Namaskaram. Today I'll explain you about the G20 event. The 2023 G20 New Delhi Summit is the upcoming 18th meeting of G20, a summit scheduled to take place in Bharat Mandapam International Exhibition Convention Center, which is in New Delhi. And this year G20 is special for India because this is the first time in the history a South Asian country hosting the G20 summit. And it is a proud moment for us that India is going to chair this G20 summit. So this is the theme of this year G20 summit: One Earth, One Family, One Future. As you see, this is a lotus, which describes the seven continents with seven petals. So what exactly is G20? थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए कि G20 एग्जैक्टली है क्या. ये 20 मेंबर्स का 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है विच इनिशियली फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1997. ये एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह फॉर्म हुआ था जिसके अंदर G7 मेंबर्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स प्लस सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के, ये इकट्ठा आए थे. और इन्होंने एक इनका इनका मेन जो पर्पस था, मेजर इश्यूज जो थे, ये रिगार्ड करते थे ग्लोबल इकोनॉमी को, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये फोकस एरिया था इनका. स्लोली 2008 के अराउंड जैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इमर्ज हुए 2007 टू 2009 के बीच में, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जब इमर्ज हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर से ये G20 ग्रुप एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया. नाउ द प्रीमियर ऑफ द ऑल द 20 कंट्रीज meet and discuss about the global economy, financial stability, climate change mitigation, sustainable development. So ये ग्रुप हेड ऑफ द स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया 2007-9 के अराउंड. सो G20 मेंबर्स के अंदर 19 कंट्रीज़ हैं, एज आई टेल यू: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड 19 कंट्री, एंड लास्ट इज यूरोपियन यूनियन as the G20 members of the country. So this year G20 presidency is important because India is hosting this G20 summit. India invited some guest countries in this summit, that is Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, UAE. And Bangladesh is only the South Asian neighbor invited in the G20 summit. Some of the international organizations also invited in the summit, that is United Nations, World Health Organization, World Trade Organization, World Bank, International Labour Organization, Financial Stability Board, and OECD. These international organizations invited in the G20 summit. And some chairs of the regional organization also invited, like ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, whose headquarters is situated in Indonesia, is the guest of this G20 summit, and two members, that is NEPAD, New Partnership for Africa's Development Agency, and African Union, both headquarters were situated in Addis Ababa, Ethiopia, were also invited in the G20 summit. इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया ने 3 मेजर अलाइंसेस को इनवाइट किया है. वन इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, CDRI, which is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and International Solar Alliance.
इस चीज़ के हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया के अंदर है, और ADB के हेडक्वार्टर्स फिलीपींस के अंदर है। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए फेमस इंपॉर्टेंस बिकॉज क्यों रखती है, क्योंकि December 1, 2020 को दिस वाज द मोमेंटस डे फॉर इंडिया। इंडिया ने पहली बार अपनी G20 प्रेसिडेंसी एट ए ग्लोबल लेवल, ग्लोबल इम्पोर्टेंस इंडिया की रिकग्नाइज करी गई जब इंडिया ने इस प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो सेड दैट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल वर्क टू promote this in universal sense of oneness, and hence he gave the theme one earth, one family and one future. G20 summit, जो हमारा फर्स्ट G20 समिट हुआ था वो वाशिंगटन DC के अंदर हुआ था इन 2008। उसके बाद लंदन के अंदर हुआ, पिट्सबर्ग के अंदर हुआ, पिट्सबर्ग रशिया के अंदर हुआ, सियोल साउथ कोरिया के अंदर हुआ। देन आफ्टर 2011 का जो हमारे पास समिट हुआ फ्रांस के अंदर हुआ। फ्रांस के बाद जो हमारा 2016 का समिट था वो चाइना के अंदर हुआ, चाइना के अंदर हुआ। फिर 2017 का जो समिट हुआ हमारा वो इटली ने होस्ट किया था। 2018 का जो समिट था वो ब्यूनस आयर्स कैपिटल अर्जेंटीना के अंदर हुआ था। आफ्टर दैट 2019 के अंदर जो मेजर G20 समिट था वो ओसाका जापान के अंदर हुआ। देर आफ्टर 2020 का जो समिट था वो सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, एंड दिस समिट वाज the first virtual summit because the COVID-19 pandemic was there, and this was the first virtual summit that Saudi Arabia organized. Thereafter Italy organized in person. That this summit is people, planet and prosperity. Theme of this summit is people, planet and prosperity. उसके बाद इंडोनेशिया ने ऑर्गेनाइज किया, थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। दिस वाज द थीम ऑफ दिस। एंड 2023 के अंदर इंडिया ने प्रेसिडेंसी होल्ड करी, एंड इंडिया ऑन 9 सितंबर 2023 को हेड्स ऑफ द स्टेट विल कम टू इंडिया, एंड दिस समिट विल ऑर्गेनाइज विद अ मोटो वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 2024 को इंडिया के बाद जो होस्ट करेगा वो ब्राज़ील G20 की प्रेसिडेंसी को होस्ट करेगा। थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं कि G20 का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। G20 का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 2 ट्रैक्स के अंदर डिवाइडेड है। 2 ट्रैक्स के अंदर, दैट इज़ फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। जो कि फाइनेंस ट्रैक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक जो गवर्नर्स हैं वो इस ट्रैक को संभालते हैं, और इनका फोकस, मेन फोकस होता है कंट्रीज़ की और ग्लोबल इकोनॉमी और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, जो कि डिपेंड करती है ग्लोबल इकोनॉमी पे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फाइनेंशियल रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पे डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स काम करते हैं, लाइक द फाइनेंशियल रेगुलेशन वर्किंग ग्रुप जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं एंड एक कंबाइंड पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। साइड बाय साइड शेरपा ट्रैक होता है। शेरपा ट्रैक के अंदर जो हेड्स है, जो शेरपा ट्रैक है वो शेरपा हेड करता है, एंड शेरपा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर्स। शेरपा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर्स, एंड इनका जो फोकस एरिया होता है वो एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, हेल्थ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इन सब को फोकस करते हैं। एंड डिफरेंट मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। लाइक जो टूरिज्म की मीटिंग हुई है वो कश्मीर के अंदर हुई है। सो इंडिया ने जो डिफरेंट मीटिंग्स कराई थी। सो G20 के अलावा कुछ एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स हैं जो पॉलिसी रिकमेंड करते हैं G20 की ऑफिशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए। लाइक सिविल 20, ये G20 जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट सिविल ग्रुप्स आके डिस्कस करते हैं अबाउट द सिविल सोसाइटीज़। सिमिलरली द बिजनेस 20, these were the different business this when the business communities were come and discuss about the business standards. Labor leaders of the labor union were come and discuss and recommend about the labor policies of the labor 20.
सिमिलरली स्पीकर्स आते हैं डिफरेंट 20 ग्रुप्स के, 20 कंट्रीज़ के स्पीकर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं। सिमिलरली साई ऑडिट्स होते हैं, स्टार्टअप्स हैं, डिफरेंट थिंक टैंक्स ऑफ 20 कंट्रीज कम एंड डिस्कस अबाउट the change with respect to global economy, change with respect to the financial stability, and change with respect to the sustainable development. Similarly youth, different जो country का youth है, how we will empower the youth empowerment, and urban 20 कैसे हम urban infrastructure को change कर सकते हैं। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रोइका, क्योंकि G20 एक स्ट्रक्चर है, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। तो G20 का एक ट्रोइका है जो कि बनता है करंट प्रेसिडेंसी, प्रेडिसेसर प्रेसिडेंसी एंड सक्सेसर प्रेसिडेंसीज के साथ। क्योंकि अभी जो ट्रोइका वो है वो इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील है। इंडोनेशिया ने ऑर्गेनाइज 2022 का समिट कर चुका है, 2024 का समिट ब्राज़ील ऑर्गेनाइज करेगा और 2023 की चेयर इंडिया के पास है। हाउ इंडोनेशिया सक्सेसफुली conducted G20 summit, it will guide India and Brazil as a learner see how this G20 summit is working and how this process is going on. So this is the formal way of the G20 working. So इंडिया की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं G20 को लेके कि ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर हाउ दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, बिकॉज सिंस इंडिया ने अभी राइस का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर, बिकॉज एज वी आर सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज रैपिडली, डेवलपिंग कंट्रीज नीड to work along with the developed countries, and developed countries ने more than $100 billion की कमिटमेंट करी है, जो शो करता है सीरियसनेस towards the climate change and how the developing countries can took these changes with respect to the developed countries. Similarly inclusive and resilient growth डिमांड करते हैं, एंड कोविड-19 की वजह से जो एक स्लो डाउन आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, उस चीज़ को कैसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द की डिस्कशन प्रायोरिटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो चेंजेस इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिस्कस। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वर नीड टू बी सेटअप सो दैट डिफरेंट मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम्स हम सेटअप कर सकें, जिसकी वजह से एक मीडियम क्रिएट हो जाए टू डेवलप इन अ फास्ट ग्रोइंग मैनर। और वुमेन लेड डेवलपमेंट इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डेवलपिंग कंट्री शुड हैव। सो इंडिया की कुछ सर्टेन प्रायोरिटीज़ हैं इसको लेके, एंड दीज शोज द seriousness and growing stature of the India by leading the G20 presidency. And this is all about G20 basics from my side. Thank you so much.